Our session that deals with regional pride over national identity. We have Mr. Rajdeep Sardesai, Editor-in-Chief, CNN-IBN and IBN7, to moderate and introduce our speaker for this session, Mr. Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat. Ladies and gentlemen. Thank you. I think it's purely coincidental that Mr. Modi and I have worn saffron today. It's proof that color is no longer the monopoly of one ideology, but we will discuss that on another day, another time. But we're all friends, and we welcome Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat, after Dr. Singh and Sonia Gandhi. It's the turn of Mr. Modi. Mr. Modi was asking me since he was in the flight as to what had Sonia and Manmohan spoken about, or Manmohan Singh ji had spoken about. And I said that they had spoken about the nuclear deal. So Mr. Modi says, I can also speak on deals, but I won't speak on the nuclear deal. But he's one politician who draws contrasting emotions. His supporters truly admire him and say that he is Mr. Gujarat. And his detractors feel that, in a sense, he is symbolic of a divisive politics. Either way, like him, dislike him, you can't ignore Narendra Modi. And I think his presence at this platform, in a sense, signifies that. The way we thought we'd do this is Mr. Modi will speak on the topic that we've kept in the brochure, which is looking at regional pride versus national identity. Mr. Modi belongs to the new brand of chief ministers who have virtually become brands themselves. Some of them become larger than the parties that they represent also. And their strength comes from the fact that they control important states of the country. He, in a sense, is therefore typical of a new breed of chief ministers who, and many believe that the power now comes from state capitals, and the future of India could well be decided in states and not at the center. So I'm going to open the floor to Mr. Modi to speak for about 10-15 minutes. He says his voice is not at its best. That happens when elections are around the corner. We'll give him 10-15 minutes, Mr. Modi, and then open up for questions. Mr. Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat. राजदीप को उसके टीआरपी का डर लग रहा है और इसलिए पहले से उसने दीवार बना दी कि आज उसकी कुर्ता के कलर का उसकी आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है, और इसलिए मैं भी उसको क्षमा कर देता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अहमदाबाद से निकलूंगा और इतना प्रभाव उस पर हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मित्रों, हिंदुस्तान टाइम्स के बीच आने का मेरा एक पहला अवसर है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूं और बहुत वेल इन एडवांस उन्होंने मेरा समय फिक्स कर दिया था, और तब मैंने उनसे कहा था कि शायद आचार संहिता आ जाएगी और मुझे दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा जो भी आ जाए आप आ जाइए। तो मैंने फिर वादा निभाना तय कर लिया और मैं आज आपके बीच में हूं। जो विषय रखा गया है, मैं उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन खोजने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं अपने आप में वो गलत दिशा की सोच शायद देश में पनपेगी। भारत जैसे विशाल देश के अंदर हम अगर ये चाहें कि राज्य कैसे भी करते रहें देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और ये हम कहें कि राज्य अधिक बल देकर के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो देश की आइडेंटिटी को खतरा हो जाएगा, मैं समझता हूं वो भी उतना ही गलत है। दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं,
पोषक हैं। भारत सरकार और या भारत नेशनल लेवल पे जो सोचते हैं उनका काम ये है कि जहां जिसकी स्ट्रेंथ हो उसको बल मिलना चाहिए और जहां उसकी वीकनेसेस हो उसमें उसको हेल्प मिलनी चाहिए। अगर ये हमारा मॉडल हम विकसित करते हैं तो हम देश की कमियों को दूर कर पाएंगे और देश में जहां जहां बिखरी पड़ी ताकतें हैं उन ताकतों को बढ़ावा भी दे सकते हैं और उन ताकतों को जोड़ करके एक भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में हम पेश कर सकते हैं। दूसरा, आज एक दुनिया में मॉडल चल रहा है वो बाय एंड लार्ज शोकेस वाला मॉडल चल रहा है। अब जैसे चाइना के पूरे डेवलपमेंट की चर्चा नहीं हो रही है, चाइना के ईस्ट बेल्ट की चर्चा हो रही है और दुनिया के सामने उसी को दिखाया जा रहा है और चाइना का मार्केटिंग हो रहा है। किसी समय न्यू दिल्ली एक मॉडल के रूप में हमारे देश में दिखाया जाता था, लेकिन वो एक अंग्रेज विरासत हमारे पास थी और दूसरा एक राजनीतिक व्यवस्था का सरकार के रूप में एक हिस्सा था जो जन सामान्य को प्रेरित नहीं करता था। दूसरा प्रयास किया गया मुंबई को फोकस करने का, लेकिन उसके अपने कंस्ट्रेंट्स थे अनेक प्रकार के, उसके कारण एक स्टेज आने के बाद हम रुक गए कि बस एक है हिंदुस्तान की पहचान की चर्चा होगी थी, आज दुनिया में कहीं पर भी तो दिल्ली के बाद मुंबई की चर्चा होती होगी, लेकिन एक सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वहां रुक गया। इसका मतलब इस मॉडल को जाने अनजाने स्वीकार तो किया गया है। अगर ये मॉडल को स्वीकार किया गया है तो क्यों न हम खुल करके इन शक्तियों को स्वीकार करें। और मैं मानता हूं तत्वतः उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि जिसका जहां पोटेंशियल है, अगर हैदराबाद और आंध्र को आईटी के माध्यम से दुनिया में हम शोकेस कर सकते हैं, हमने करना चाहिए। अगर बेंगलोर की नॉलेज कैपेसिटी को अगर हम स्ट्रेंथ मानते हैं तो हमने दुनिया के सामने जाना चाहिए। अगर गुजरात का डायमंड दुनिया में चमकता है तो उस डायमंड की भरपेट तारीफ करते हुए चलना चाहिए। जब तक हम इस रूप का स्वीकार नहीं कर सकते, देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हम अच्छाइयों को, शक्तियों को न बढ़ावा दे पाएंगे न पहचान कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि समय की मांग है कि हम देश में एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब ये हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट स्टेट और सेंटर के बीच आज संभव नहीं है, लेकिन विद इन स्टेट जरूर संभव है। उसके पैरामीटर बन सकते हैं, वेल इन एडवांस पैरामीटर्स की चर्चाएं हो सकती हैं। अदर देन गवर्नमेंट एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको लीड कर सकते हैं और हर एक को ध्यान में आएगा कि भाई इस क्षेत्र में देश यहां प्रगति कर रहा है, इस क्षेत्र में यहां कर रहा है, वहां से कुछ सीखा जा सकता है और वहां कुछ चीज ले जाई जा सकती है। और मैं समझता हूं इस मॉडल की ओर हमने जाना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, मेरा ये मत जरूर है कि आजादी के समय देश में आजादी की जो ललक थी, आजादी के लिए हर नागरिक जिस प्रकार से जुटा था, अब आजादी का आंदोलन 1857 से 1857 से उसकी चर्चा तो हो रही है। व्यक्तिगत रूप से अनेक लोगों ने बलिदान दिए, बहुत कोशिश की देश को आजाद कराने के लिए। सैकड़ों लोग थे जो अंडमान निकोबार की जेलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन पर परिवर्तित किया। हर व्यक्ति को लगा कि मेरे इस कार्य से मैं आजादी में योगदान दे सकता हूं, आजादी के योगदान में। और ये सबसे बड़ा महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने देश के हर नागरिक को आजादी की ललक पैदा की, हर आदमी को जोड़ा। आजादी की जो ललक गांधी ने पैदा की थी, जो जन आंदोलन पैदा किया था, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद विकास की वो ललक हम पैदा कर पाते हैं। डेवलपमेंट एक मूवमेंट बन जाती है, डेवलपमेंट को जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाता। मैं वो व्यक्ति हूं जो गुजरात के गौरव की दिल ठोक करके बात करता हूं
और मैं मानता हूं, मेरी सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो मैंने पहले ही दिन मेरा एक मंत्र कहा था, उस मंत्र को आज भी लेके मैं चलता हूं, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अल्टीमेट मेरी इच्छा यह है कि मेरा देश महान बने, लेकिन उसके लिए मेरा दायित्व है गुजरात। मुझे गुजरात में कुछ करके दिखाना चाहिए, मुझे देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरी देश के साथ कंपटीशन नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मुझे ये भाव पैदा करना है कि मेरे देश के विकास के लिए मेरा राज्य कंट्रीब्यूट करे, ये भाव पैदा करना है, तो उस राज्य के विकास का एक माहौल खड़ा करना पड़ता है। मुझे गांधी सरदार की याद दिलानी पड़ती है। हमारे एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी है, उसकी मेरे राज्य के लोगों को याद दिलानी पड़ती है। मुझे उनको कहना पड़ता है कि देखिए भाई, तुम्हारे अंदर ये दम है, तुम इस काम को कर सकते हो, चलो मेहनत करो। मित्रों, मैं अगर ये न करता तो क्या होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता था, आज भी रहता है। पिछले 5 साल का इतिहास छोड़ दें, 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी, और उसके कारण मेरे यहां रेगिस्तान बढ़ रहा था। मेरे यहां पूरा सौराष्ट्र एक प्रकार से एक्सोडस चल रहा था। कच्छ और सौराष्ट्र से लोग अपना गांव घर छोड़ करके सूरत और मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब हमने एक मोमेंटम खड़ा किया, जल संचय के लिए एक अभियान चलाया, लोग भागीदारी को बल दिया और ये प्रेरणा जगाई। और आज परिणाम ये हुआ कि वाटर कंजर्वेशन के विषय में आज गुजरात देश के लिए एक मॉडल बना हुआ है। जो 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी का स्टेट था, चेक डैम, बोरीबंद, रिवर ग्रिड, रिचार्जिंग वेल्स, इतने सारे अभियान चलाए। आज एक एक बिंदु को बारिश के पानी को रोकने का प्रयास किया, और आज उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे गुजरात के अंदर अच्छे से अच्छी बारिश जब होती थी, 16 नहीं वर्ष होता था, तब भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम 9,000 करोड़ हुआ करती थी। दिस ईयर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 34,000 करोड़ है विद इन 4 years। मित्रों, अगर वाटर अब ये मैं जन आंदोलन, जनता के दिमाग में ये भाव बढ़ता नहीं, तो मैं नहीं मानता सरकार ये कर सकती थी। ये आप उनके अंदर एक प्राइड पैदा करना पड़ता है, एक गौरव की अनुभूति करानी है, और जब वो रिकॉग्नाइज होता है तो उसको आनंद होता है। मित्रों, मेरे यहां वैसे गुजरात एक बहुत बड़ा प्रगतिशील राज्य के रूप में आप लोगों के पास पहचान है। मित्रों, जिस दिन मैंने शपथ लिया और उसके बाद मेरी जो सेक्रेटरी लेवल की पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो रिपोर्टिंग किया, उसने कहा, साहब, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में गुजरात देश में 20 नंबर पे खड़ा है। एंड आई वाज शॉक। मित्रों, उस रात में सो नहीं पाया था। क्या मेरे राज्य में यह स्थिति हो सकती है? मैंने जन आंदोलन खड़ा किया। हर बार 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे राज्य में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, जून महीने में आमतौर मेरे यहां अफसरों को शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड जाने की आदत बनी हुई थी। राजनेताओं को भी वहां जाने की आदत बनी थी। मैंने तय किया, मैं 13, 14, 15 जून 3 दिन राज्य में जहां कम से कम एजुकेशन है, उस गांव में जाके मैं रहूंगा। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी रहूंगा। और स्थिति ये बनी मित्रों कि मेरी पूरी सरकार गांव जाने लगी, आईएएस अफसर जाने लगे, आईपीएस अफसर जाने लगे। 3 दिन करीब 750 की मेरी टॉप टीम गांव में रहने लगी। और आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट में हम सक्सेस हुए। मेरा ड्रॉप आउट 49% था, इट हैज कम डाउन टू 3%। इज अ मिरेकल मित्रों। अगर ये प्राइड पैदा नहीं करते तो डेवलपमेंट होता नहीं। प्राइड पैदा नहीं करता तो मित्रों डेवलपमेंट होता नहीं। और डेवलपमेंट तब तक नहीं होता है जब तक जन भागीदारी नहीं बनती। जन भागीदारी तब तक नहीं बनती है जब तक उसका इमोशनल अटैचमेंट ना हो। सिर्फ मियर फाइनेंशियल गेन के लिए जन भागीदारी बनती नहीं है, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। और इमोशनल अटैचमेंट के लिए उसको दिखना चाहिए कि हाँ, ये बदल आया। मैं इन जनरल तो देशभक्ति की चर्चा करूं, भारत माता बोलूं, लेकिन मैं हर ट्रेन के डिब्बे में पान खाकर के थूकता रहता हूं। लेकिन मैं भारत माता के स्वरूप को समझूं तो फिर मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। ये जब तक हम इमोशनल लेवल पर चीजों को नहीं ले जा सकते, हम परिस्थिति को पकड़ते नहीं। मित्रों, मुझे याद है, मैं जब गुजरात गया 2001 के अक्टूबर महीने में, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व आ गया। मैं यहां दिल्ली में रहता था, अचानक गया था, वहां की समस्याओं से भी बहुत दूर था, वहां की ओवरऑल चीजों से परिचित नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया
तो मुझे जो मित्र लोग मिलने आए, पत्रकार मित्र मिलने आए, तो उन्होंने कहा मोदी जी एक काम कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए आप। डिनर के समय इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, इतना तो कीजिए। ये मुझे लोग मांग कर रहे थे। मित्रों, आज हमने एक अभियान चलाया, ज्योतिग्राम योजना, और पीपल्स पार्टिसिपेशन से चलाया। 1000 दिन का मेरा ये अभियान चला, 1000 डे, और मैंने तय किया कि मैं हर गांव को 24 घंटे बिजली दूंगा, और उसके लिए जो भी टेक्निकल सॉल्यूशन लाने हैं उसको खोजे। मित्रों, 1000 दिन में, और ये आप सबके लिए सरप्राइज होगा, वही सरकार, वही मुलाजिम, वही फाइलें, वही तौर तरीके, वही आदतें, एंड नो वन वाज रिक्रूटेड इन माय टाइम। ये सब पुराने जमाने के रिक्रूटेड लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर प्रेरणा जगाई, राज्य मेरा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। एक प्राइड भर दिया। 1000 डे में 23 लाख नए बिजली के पोल डाले गए, 56,000 नए ट्रांसफार्मर डाले गए, 75,000 किलोमीटर नया बिजली का केबल डाला गया विद इन 1000 डे। कैन यू इमेजिन कितना वर्कलोड उन लोगों ने झेला होगा 1000 दिन तक। और परिणाम यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति मेरे यहां आए थे, और गुजरात के अंदर 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी न्यूक एंड कॉर्नर। यानी ये बदलाव आ सकता है। और जब ये बिजली सिर्फ नहीं आई मित्र, उसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आया। डॉक्टर जो गांव छोड़ करके शहर चला जाता था, गांव में रुकने लग गया। मेरे यहां गांव के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की संभावना खड़ी हो गई। बच्चा कंप्यूटर गांव में सीखना चाहता था, अवेलेबल। यानी पूरा बदलाव जीवन में आया। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है, दुनिया गुजरात हिंदुस्तान को एक बाजार के रूप में देखती है। ज्योतिग्राम के कारण मैंने गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में, गांव को भी उत्पादन का केंद्र बनाने की दिशा में बदलाव कर दिया। और उसका नतीजा ये होगा, गांव की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जब गांव की इकोनॉमी बदलती है तो शहर में अपना आप उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है, मार्केट क्रिएट हो जाता है। ये इकोनॉमिक से सीधे साधे नियम है। मित्रों, एक चीज करने से क्या, मित्रों, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसने एक बात सुनी होगी, हर किसी ने, और आप बोले भी होंगे। गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई इसमें बाकी नहीं है। सबने कहा है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। सबने कहा, किसी ने रास्ता खोजा। मित्रों, रास्ता कानूनों से नहीं खोजा जाता, आपको उसको इमोशनली मोटिवेट करना पड़ता है। मैंने गुजरात के अंदर एक बीड़ा उठाया, मैंने जुडिशरी लोगों को मिला, और 3 चीजों को मैंने उनके सामने रखा। एक, मैंने कहा मुझे इवनिंग कोर्ट चालू करनी चाहिए, आप मुझे मदद कीजिए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गरीब देश है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएगा? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इवनिंग कोर्ट चालू करेंगे। मित्रों, वी आर फर्स्ट इन द कंट्री जिसने इवनिंग कोर्ट चालू की। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, और 14 नवंबर पंडित नेहरू के जन्मदिन पर, आज से 11 महीने पहले, उस कोर्ट को मैंने प्रारंभ किया। आज 80 इवनिंग कोर्ट चल रही हैं, और करीब 1.5 लाख लोगों को न्याय मिल चुका। 1.5 लाख लोगों को मित्रों। और मैंने ये काम ये किया कि जो गरीब आदमी है, जो दिन में रोजी रोटी कमाता है, जिसको कोर्ट जाना, इन्हें रोजी पूरे दिन की खो देना, ऐसे जो गरीब लोग थे उनके केसेस में शाम को ट्रांसफर कर दिया, इवनिंग में ट्रांसफर कर दिए। गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, बेचारा चने ममरे बेचता है, उसकी छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, उसको बचा लिया। मित्रों, दूसरा मैंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, क्या हम कोर्ट का टाइम आधा घंटा बढ़ा सकते हैं? और मैं खुशी से कहना चाहता हूं, मेरे राज्य के जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों ने आधा घंटा कोर्ट का टाइम बढ़ा दिया। और तीसरी बात मित्रों, मैंने उनसे प्रार्थना की थी, क्या हम कोर्टों में वैकेशन कम कर सकते हैं? और मुझे आनंद है, मेरे कोर्ट के सभी जजेस ने 7 डेज जुडिस अपना कोर्ट का वैकेशन कम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे यहां पेंडेंसी बहुत तेजी से कम हो रही है मित्रों। यानी एक बार हम चाहें, अब इन चीजों को मैं ये कहूं मेरे देश में ऐसा है, उनको परास्त करने के लिए गुजरात में ऐसा करना चाहिए, बात बनती नहीं। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरे गुजरात का गरीब आदमी न्याय चाहता है, हमने व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, उनको प्रेरणा मिलती है। और मैं अपने दायरे में काम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के मिजाज से काम करता है। देश की विकास यात्रा में हम पार्टनर बनते हैं। मैं समझता हूं
प्राइड पैदा करके करें, इमोशनल अटैचमेंट से करें, मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, आज गुजरात ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है उसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। देश के सभी राज्य किसी न किसी काम को देखने के लिए हर हफ्ते कोई न कोई डेलीगेशन गुजरात में होता है, और ऑफिसर्स लेवल का कि जो एक्चुअली हमारे इन छोटी छोटी चीजों को हमने लाए हैं उसको देखने के लिए प्रयास करता है। और नतीजन ये है कि आज जो गुजरात प्रगति कर रहा है वो भारत के विकास के लिए कर रहा है। मेरा देश दुनिया के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाए, इसके लिए गुजरात को जो करना चाहिए उसको करने के प्रयास के भागरूप आज गुजरात कर रहा है। मैं इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख रहा हूं। एक प्रकार से यही व्यवस्था है जो पूरक भी हो सकती है, पोषक भी हो सकती है। मैं नहीं जानता हूं मैंने समय का पालन किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।